Dear students, Assalamu alaikum. Today we are going to discuss on exercise number 6.3, question number 12 and 13, page number 146 of similar triangles. The question number 12 is question number 12. Sides AB and BC and median AD. Sides AB, BC and median AD of triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that triangle ABC is similar to triangle PQR. दो ट्रायंगल्स हैं, एक ट्रायंगल है ABC, और दूसरी ट्रायंगल है PQR, AB and BC, and median AD जो है ये BC पर मीडियन है, इसका मतलब है BC का मिड पॉइंट है D, AD मीडियन है, that means D is the midpoint of BC, or respectively proportional to the sides PQ, QR and median PM. PM यहाँ पर मीडियन है, that means M is the midpoint of QR. गिवन और टू प्रूव आप खुद लिख सकते हैं, साइड्स ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्रायंगल, ये वहां लिखा हुआ है. और शो दैट हमने प्रूव करना है, टू प्रूव हमने प्रूव ये करना है ट्रायंगल ए बी सी, गिवन वहां पर जो क्वेश्चन है साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी आर रेस्पेक्टिवली प्रोपोर्शनल टू साइड्स पी क्यू एंड क्यू आर. या आप इस तरह से लिख सकते हैं, गिवन अगर लिखेंगे, गिवन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर such that AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AD divided by PM. AD divided by PM, ये गिवन है. टू प्रूव हमने प्रूव करना है ट्रायंगल ABC is similar to triangle PQR, ये इसको सिमिलर है. प्रूफ हम लिखेंगे, प्रूफ D is the midpoint of BC, therefore BD is equal to CD. And M is the midpoint of QR. M is the midpoint of QR. Therefore QM is equal to RM. QM is equal to RM. D is the midpoint of BC because AD is the median of triangle ABC. जब AD मीडियन है, मीडियन की डेफिनेशन ही ये है
A line segment median divides the a line segment drawn from a vertex to the opposite side bisects the side. ये इस साइड को दो बराबर हिस्सों में divides it into two equal parts. तो लिहाजा हम ये कह सकते हैं BD is equal to CD because D is the midpoint. When AD is the median, then D is the midpoint of BC. Here PM is the median, then M is the midpoint of QR. तो आप ये कंडीशन लिख सकते हैं. Now अब हम ये कंडीशन उठाएंगे. AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AD divided by PM. ABAD इसका मतलब है ये ट्रायंगल. इसी तरह यहाँ पर PQQR PQPM ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल. लिहाजा ये साइड हम चेंज करेंगे, इस साइड इस ट्रायंगल में इसको लाएंगे. Implies AB divided by PQ is equal to BC is equal to twice BD. इसको हम लिख सकते हैं twice BD. BD का दुगना जो है वो BC के बराबर है because BD is equal to CD. BD is equal to CD. When BD is equal to CD, then we can write BD is equal to 1/2 of BC or BC is equal to twice BD divided by QR is equal to twice QM. Twice QM is equal to AD divided by PM. 2 और 2 यहाँ पर कैंसिल हो. यहाँ पर हम लिख सकते हैं because BC is equal to because BD is equal to CD. BD is equal to CD is equal to 1/2 of BC. जब ये 1/2 of BC के बराबर है, BC is equal to twice BD, BC is equal to twice CD. हम लिख सकते हैं. Implies AB divided by PQ is equal to BD divided by QM is equal to AD divided by PM. ये हमें कंडीशन निकली. AB divided by PQ is equal to AD divided by PM is equal to BD divided by QM. इसका मतलब है इन दो ट्रायंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो है वो हमें प्रोपोर्शनल निकले. इन ट्रायंगल ABD and triangle PQM. तो कंडीशन हमें निकली AB divided by PQ is equal to BD divided by QM is equal to AD divided by PM. आगे लिखेंगे proved above. Therefore triangle ABD is similar to triangle PQM by AA similarity, SSS similarity. जब दो ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल हों तो वो ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होती हैं. ये SSS सिमिलरिटी है जिस पर हमने इससे पहले डिस्कस किया है. अब जब ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो हम लिख सकते हैं 10. When triangles are similar, their corresponding angles are equal. तो हम लिख सकते हैं एंगल B is equal to एंगल Q. एंगल B is equal to एंगल Q. ये एंगल इस एंगल के बराबर है. Now angle B is equal to angle Q. Now in triangle
ABC and triangle PQR, PQR हम यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर हमें कंडीशन है AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BC डिवाइडेड बाय QR। ये गिवन है हमें, ये गिवन है हमें। एम्प्लॉय एंड एंगल ABC दैट इज एंगल B। एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल क्यू जो है वो PQR के बराबर है। PQR प्रूव्ड above। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity। साइड ABBC और इसके बीच का साइड ABBC और बीच का एंगल इनका ये है एंगल B। इसी तरह PQQR इनका इंक्लूडेड एंगल जो है वो एंगल Q है। Triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity। SAS similarity। तो इस तरह से हमने ये प्रूव किया, हम लिख सकते हैं hence प्रूव। एक बार फिर मैं आपको बता दूं मैंने क्या किया। मैंने प्रूफ में लिखा D is the midpoint of BC and M is the midpoint of QR। Therefore BD is equal to CD and QM is equal to RM because AD is the median of triangle ABC and PM is the median of triangle PQR। तो फिर मैंने ये लिखा AB divided by PQ is equal to BC divided by QR is equal to AD divided by PM। ये गिवन है हमें, जो आपकी टेक्स्ट बुक पर दिया हुआ है कि ये तीनों ये साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल है। तो BC को मैंने चेंज किया ट्वाइस BD में, इसी तरह QR को मैंने चेंज किया ट्वाइस QM में। 2 और 2 मैंने यहाँ पर कैंसिल किया था यहाँ पर, तो वहां पर हमें कंडीशन निकली थी AB डिवाइडेड बाय PQ, AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QM इज इक्वल टू AD डिवाइडेड बाय PM। इन ट्रायंगल ABD ये ट्रायंगल और फिर PQM ये वाली ट्रायंगल, यही कंडीशन मैंने लिखी यहाँ पर AB डिवाइडेड बाय PQ इज इक्वल टू BD डिवाइडेड बाय QM is equal to AD divided by PM। proved above, ये हमने प्रूव की यहाँ पर। Therefore when corresponding sides are proportional in two triangles then the triangles are similar। triangle ABD is similar to triangle PQM by SSS similarity। जब ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हों तो हम लिख सकते हैं इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो है आपस में वो इक्वल होते हैं। व्हेन टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। हम लिख सकते हैं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। नाउ इन ट्रायंगल ABC एंड PQR, ए जो हमने प्रूव करनी है ये सिमिलर है या नहीं है PQR। AB divided by PQ is equal to BC divided by QR, ये गिवन है। AB divided by PQ is equal to BC divided by QR, ये गिवन है। एंड एंगल ABC हो गया ये एंगल B, ABC is equal to एंगल PQR हो गया ये एंगल Q, PQR प्रूव्ड above, ये हमने ऊपर प्रूव किया। Therefore triangle ABC is similar to triangle PQR by SAS similarity। ABBC और इनका इंक्लूडेड साइड है ये एंगल A, इंक्लूडेड एंगल है एंगल B, इनके बीच का एंगल है। तो हमने यहाँ पर जो थ्योरम यूज की वो SAS सिमिलरिटी है।
if two sides of one triangle, two sides and one angle of one triangle, if two sides and included angle of one triangle, if two sides of one triangle or if two sides of one triangle are proportional to the two sides of the another triangle and their included angle is equal, then the triangles are similar. ये SAS सिमिलरिटी है. इस तरह से हमने ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमने प्रूव किया. अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 13 पर. डियर स्टूडेंट्स, हमें उम्मीद है कि जिस तरह से हम मेहनत कर रहे हैं इसी तरह से आप भी घर में इन पर मेहनत करेंगे, इन क्वेश्चंस पर अपना वक्त और ज़ाया नहीं करेंगे. अब हम क्वेश्चन नंबर 13 पे जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 13. The question number 13 is, D is a point on the side BC of a triangle ABC. ABC एक ट्रायंगल है और D इस पर, ये C है और D इस पर एक पॉइंट है. Of triangle, D is a point on the side BC of a triangle ABC such that angle ADC is equal to angle BAC. Show that CA square is equal to CB into CD. CB into CD. CA square, ये CA square is equal to this. Angle ADC, ADC ये एंगल, ADC हो गया ये एंगल, is equal to एंगल BAC, BAC हो गया ये पूरा एंगल, ये BAC, ये गिवन है. Given a triangle ABC in which angle ADC is equal to angle BAC. BAC ये गिवन है. हमने प्रूव करना है. टू प्रूव हमने ये करना है, CA स्क्वायर is equal to CB into CD. अब यहां पर मैं प्रूफ लिखूंगा. प्रूफ in triangle ABC and triangle DAC. मैंने इन ट्रायंगल BAC लिखूंगा. मैं अगर मैं लिखूंगा ABC तो यहां पर है DAC. चलो ABC लिखते हैं. ABC एंड DAC. ABC एंड DAC. हम यहां पर लिखेंगे एंगल ABC एंड DAC. एंगल BAC is equal to angle BAC is equal to ADC. आगे लिखूंगा मैं, ये गिवन है.
एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये कॉमन है। देयरफॉर एक बार फिर मैं ये समझाऊंगा आपको। मैंने इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ए सी, ये वाली ट्रायंगल ये उठाई, तो यहां पर हमें कंडीशन है बी ए सी, एंगल बी ए सी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी, ए डी सी ये गिवन है, वही मैंने लिखा। ए बी ए सी हो गया ये पूरा एंगल यहां से यहां तक, और इज इक्वल टू ए डी सी हो गया ये वाला एंगल, ये गिवन है। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल सी, ये एंगल, ये बड़ी ट्रायंगल में भी यहीं पर है और ए डी सी में भी यहां पर है, डी ए सी में भी यहीं पर है, कॉमन है। देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल डी ए सी by a similarity, by a similarity। a similarity हमें ये बताती है if two angles of one triangle are equal to the two angles of the another triangle, then the two triangles are similar, and this is called the asimilarity criterion, asimilarity criterion। Thus when triangles are similar, then their corresponding sides or their students proportional. Their students, when triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. A B A C के जो अपोजिट साइड है वो सी बी है, सी बी डिवाइडेड बाय छोटी ट्रायंगल में ए डी सी का जो अपोजिट साइड है ए डी सी, इसका अपोजिट साइड जो है वो सी ए है, इज इक्वल एंगल सी का जो अपोजिट साइड है वो ए बी है, डिवाइडेड बाय, और एंगल सी का जो छोटी ट्रायंगल में अपोजिट साइड है वो ए डी है, और तीसरा साइड अब जो यहां पर रह गया ए बी सी बी भी आ गया और ए बी भी आ गया। अब रह गया बड़ी ट्रायंगल में, बड़ी ट्रायंगल इस ट्रायंगल में सी बी भी है और ए बी भी आ गया। अब रह गया तीसरा साइड है सी ए, डिवाइडेड बाय, अब तीसरा साइड इसका ढूंढना आसान है इस ट्रायंगल का, डी ए सी का, सी ए भी है हमारे पास, ए डी भी है, सी ए बी ए डी भी, तो हमें तीसरा साइड रह गया यहां पर सी डी, implies CB divided by CA is equal to CA divided by CD। ये जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ढूंढने इन एंगल से आसान हो जाते हैं, यानी कि इस एंगल का अपोजिट साइड लिखना है, डिवाइड इस एंगल का अपोजिट साइड करना है, फिर इस एंगल का अपोजिट साइड और इस एंगल का अपोजिट साइड। ये यहाँ पर एंगल सी है इस ट्रायंगल का, यहाँ पर है एंगल सी इस ट्रायंगल का, तो यहाँ पर एंगल सी के अपोजिट साइड है सी ए और यहाँ पर एंगल सी का अपोजिट साइड है ए डी। जब दो साइड्स हमारे पास आ गए तो बाकी रह गया तीसरा साइड यहाँ और तीसरा यहाँ, वो ये दो साइड्स है। मैंने ये दो इसलिए फॉरवर्ड किए क्योंकि हमें सी ए स्क्वायर चाहिए, सी ए इंटू सी ए इज इक्वल टू सी ए स्क्वायर इज इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, सी बी इंटू सी डी, हेनेस प्रूव्ड, हेनेस प्रूव्ड, हेनेस प्रूव्ड। डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ टेक्स्ट बुक पर है। D इज ए पॉइंट ऑन द साइड BC, BC पर D एक पॉइंट है ऑफ ट्रायंगल ABC का, such that एंगल ADC ये एंगल इज इक्वल टू
इज इक्वल टू BAC। BAC ये एंगल है, हमने प्रूव करना है CA स्क्वायर इज इक्वल टू CB इंटू CD। प्रूफ मैंने लिखा इन ट्रायंगल ABC बड़ी ट्रायंगल एंड ट्रायंगल DAC ये एंगल BAC इज इक्वल टू ADC ये गिवन है, क्योंकि पहले इसका ट्रायंगल लेना है, एंगल लेना है, फिर इसका एंगल लेना है। अरेंजमेंट में गड़बड़ नहीं होना चाहिए। फिर इसका एंगल C है, ये इस एंगल का एंगल C है। Therefore triangle ABC is similar to triangle DAC by a similarity criterion. Dear students, we know that when two triangles are similar, then their corresponding sides are proportional. अब यहाँ पर मसला ये है कि corresponding sides हम कैसे पहचान सकें। यहाँ पर A का अपोजिट साइड है एंगल A का बड़ी ट्रायंगल में, एंगल A का अपोजिट साइड है CB, और यहाँ पर D का अपोजिट साइड है छोटी ट्रायंगल में CA इज इक्वल टू, यहाँ पर एंगल C का अपोजिट साइड बड़ी ट्रायंगल में है AB, और छोटी ट्रायंगल में C का अपोजिट साइड है AD इज इक्वल टू, तीसरा साइड यहाँ रह गया CA एंड CD। इन दो को मैंने फॉरवर्ड किया ताकि हमें ये कंडीशन मिल जाएगी। CA इंटू CA इज इक्वल टू CA स्क्वायर इंटू CB इंटू CD हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हमारे ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंप्लीट हो गए। थैंक यू फॉर टुडे।